of our planet. If you hear their stories, the passion, the triumph, and their sheer love for this planet, we clearly felt that it required a national platform to showcase these stories. And that's why I'm saying is we started off by making these insightful, intriguing, short format stories that we could showcase to the world, reach out to tens of millions of viewers on National Geographic. And not only that, we decided to take it a step further, where we could showcase that across the Disney Star entertainment channels, so that this message can reach wide and far. And that for us, I think the big thing is, if we can actually make people think that if these individuals can do it, so can I think our job is done. That's definitely what I felt when I saw the stories, and I'll talk to you more about what they made me feel. But I'm just really grateful, Kevin, that National Geographic is applauding these heroes, is celebrating the change that they are bringing to society as individuals. And, you know, I think we all understand that when we tell stories well, and we offer the unique perspectives towards change, and we build that awareness, we help more people understand the power of taking that one step through these narratives. So what we're going to be doing is this year, we're going to have 30 of these stories. 30 of these stories that we'll be showcasing right through the year. But we decided we'll start off with the 10 change makers. And we thought with Earth Day approaching on 22nd of April, we'll start showcasing these 10 change makers on the channel. And right through the year is where we showcase all the other 30 stories. I can't wait to meet these 30 stories, but I'm very excited that I know many of these 10. And I'm looking forward to knowing more about them and, of course, meeting them and introducing them to all of you. Actually, for us, I'm saying as we look at it, I'm saying is if these stories can uplift and inspire everyone in this country, our job is done. They sure will. I'm saying is we will look at trying to see how we can put it out there in high frequency so that we can reach up to as many people as possible. And if we can get our planet lovers to all think that if these people can do it, so can I think we can make a world of a difference as we go forward. I absolutely believe that this is going to happen. Should we have Sachin come in and introduce? Yes, because you know what? There's so much we spoke. We can all serve the earth while we continue to do the work that we do. Thank you, Venkatesh, for that. Dr. Purnima, you've said you created an army of all women, and might I add, to save an endangered species. But for the benefit of the audience here, how can one identify a local or an endangered species within their vicinity, and what is that first step that they can make towards protecting it? Because you discovered in Assam what you could do, but all of us seated here should also be able to discover something that we can do. So thank you so much, Dia, for this question and for inspiring us. And thank you so much, everyone. I'm so honored to be here. And you can see my Hargila bird in my dress, made by our Hargila army. Beautiful. Thank you. So I want to give you a message that everyone can be a conservationist. We don't need to have a special diploma or degree for being a conservationist, and our Hargila army has proved that. And let's start our everything from our own backyard, from our own home, because environment education begins from our own. I couldn't agree with you more. There was another theory which I actually wanted to ask you. If you take economy flights instead of doing like first in business, that's also reducing your carbon footprint, right? Yes, that as well. Awesome. Thank you for clarifying that. There are, how many of you are going to start some of these things today? Raise your hands. Are you inspired? Okay, Dr. Purnima's husband is not allowed to raise his hand. I loved saying that. Dr. Purnima's husband is not allowed to raise his hand. Okay. वर्षा जी, मैं आपसे आप और मैं बहुत सिमिलर हैं, राइट? हम एंटरटेनर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, लोगों से बात करते हैं और
अपने काम के द्वारा हम एक बदलाव, एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. एज अ रेडियो जॉकी, यू नो, you've tried to bring a lot of change. आपको क्या लगता है एज इन्फ्लुएंसर्स हम सब क्या एक रोल प्ले कर सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट चेंज? ऑफकोर्स Thank आप you. तो जीता जाता एग्जाम्पल है इस बात का, और मेरी उम्मीद भी यही है कि मेरे जो एक्शंस हैं वो इंस्पायर करे लोगों को. लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये जो नहीं समझते इस बात को. आपको लगता है कि सब में ये क्षमता है टू ब्रिंग चेंज? बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग मुंबई. मेरा नाम वर्षा है और मैं बुंदेलखंड से हूँ, एक आरजे, और रेडियो बुंदेलखंड में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ. तो क्लाइमेट को लेकर जो मेरे अंदर एक लगा था कि मुझे क्लाइमेट को लेकर काम करना है, वो मेरे साथी और मेरे घर दोनों तरफ से मुझे इसमें मदद मिली है. और मुझे लगता है जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि जीवन जीने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, राइट. तो अगर हम उसी तरीके से ये सोचें ना कि उन तीनों चीज़ों में अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें सांसें भी बहुत ज़रूरी है. और वो सांसें अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भरी होंगी तो हम क्या रह पाएंगे? क्योंकि आज हमने क्लाइमेट के साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़ किया है जिसकी वजह आज हमें कोरोना जैसी महामारी देखने को मिल रही है. तो अगर हम ऐसे ही इसके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आने वाली जनरेशन को हम जो देकर जाएंगे ना, वो बहुत गंदे तरीके से उनको एक वातावरण देके जाएंगे. तो अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बस ये सोचें कि जिस तरह से हमारे लिए वो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी तरह से हमें पर्यावरण भी हमारे लिए ज़रूरी है. तो बिल्कुल चेंज होगा, सब कुछ बदलेगा. हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तभी बदलाव आएगा, और किसी एक के करने से नहीं होगा. ये हमारी सोच है. हम दूसरों की बजाय खुद में बदलाव लाना जब शुरू करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आएगा ही आएगा, और उसे आना ही पड़ेगा. अगर हम बिना वजह कोई लाइट अगर जल रही है उसको बंद कर देते हैं, या फालतू का पानी कहीं बह रहा है उसे हम अगर बंद कर देते हैं, तो ये हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा. हम एक रास्ते पे 4-4 लोग जा रहे हैं, वहाँ पर चारों अलग अलग गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ही गाड़ी में एडजस्ट होकर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, तो हमें पोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जिस तरह से हम चारों गाड़ियाँ ले जा रहे हैं और पोल्यूशन को कह रहे हैं भाई आओ आओ, तो इस तरह से नहीं. मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ये कदम उठाने चाहिए, और बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और जो काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं. मैंने रेडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें मेरे साथी मनीष ने बहुत साथ दिया है, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैंने सीखा है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है. क्योंकि बुंदेलखंड के जो व्यक्ति थे पहले, वो शायद उस चीज़ को नहीं समझते थे. उन्हें नहीं लगता था कि क्लाइमेट अगर हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं. वो समझते थे कि यार हो रहा है, ठीक है, भगवान की मर्ज़ी है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं. लेकिन जब बारिश, बिन मौसम के बारिश हुई, बहुत ज़्यादा फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तब उनको समझ में आया कि यार मैंने जो पेड़ लगाए नहीं हैं, काटे बहुत ज़्यादा हैं. मैंने जंगल बचाने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन पिछला जो अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो आसपास कितने सारे जंगल हुआ करते थे, आज तो वो है ही नहीं. तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा ही कारण है कि हमने इनके साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की है. थैंक यू. बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने. आई थिंक हम सबको, हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस एक थियोरी नहीं है, एक रियलिटी है. हम सब उससे जूझ रहे हैं. और आपने दूसरी सही बात ये कही कि रोटी, कपड़ा, मकान तो तब चाहिए होगा जब सांस लेने को स्वच्छ हवा और पीने को पानी और धरती जिसमें हमारे फसल उग सकते हो वो हो. अगर ये सब ना हो तो फिर मकान का क्या करेंगे और बाकी सब चीज़ों का क्या करेंगे. दिया मैम, एक और बात जो मैं बोलना चाहूँगी. पहले मैंने देखा था बुंदेलखंड में पानी की बहुत क्राइसिस थी, अभी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन जिन गांव में सरकार द्वारा या कुछ प्राइवेट एनजीओज़ हैं जिनके माध्यम से पानी वहां पर पहुंचा है, वहीं अगर उसका उल्टा असर देखा जाए ना, तो लोगों में अब वो जो पानी को बचाने की ललक थी एक, वो ख़त्म हो चुकी है. नल आ रहे हैं, पूरा दिन पानी बहेगा,
वो नहीं समझते हैं कि जब पानी नहीं था मार्च और जुलाई इस महीने में, जब पानी के लिए आपको भागना पड़ता था, यहाँ से एक मटके के लिए 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना पड़ता था और सर पे रख के आपको लाना पड़ता था, आज आप उसी पानी को इतना वेस्ट कर रहे हैं और वो बह रहा है, तो उससे और ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ को भी दिक्कत देगा आगे चल के, क्योंकि उसमें मच्छर पनप रहे हैं, उसमें गंदगी हो रही है, आपका रास्ता खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम खुद से चीज़ें करना शुरू करेंगे दूसरों को समझाने की बजाय, तो ज़रूर होगा कुछ ना कुछ अच्छा। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंस्पिरेशन। यूर राइट, आपने जितनी भी बातें कही सब सही कही। विद्युत,